So, hello everyone, welcome to you all again. So, in this today's session, all of you know that this is the complete demo session is going on for the master students, and we have completed yesterday. We completed the first session that was on feldspar mineral group, and today's session is the second session that will be focused on the structural geology. Okay, and the topic is superimposed folds. Okay, superimposed fold means superimposed deformation. And the upcoming, you can see the total this demo session, it will continue up to 7th of April, and there is no gap. It is a continuous marathon class like. So in 29, then we'll be getting the third session, metamorphic petrology, then 30, 31st, and it will continue up to 7th. Okay, so we have selected 12 important topic according to us. Then we'll be covering each and every things in detail, whatever they will be possible. Okay, so let's just come. This is the today's topic. This is for superimposed folds. Okay, so this is one superimposed deformation, and yes, superimposed fold. Now this superimposed fold is little bit difficult to some students, or it might not be that much of a familiar to all of you, but this is, I think this is the scenario for now, that you are not that much, but I will try to make you feel happy. And these are the examples of superimposition fold, that how these are the facial expressions. Okay, so before going to this superimposed folds, then first of all we'll have to see that what is a fold and what are the morphologies of fold. Because in superimposition of fold, what actually happens, there is one particular fold, okay, first generation of fold, and there will be some second generation of fold. If they are interfering, then they will produce one third generation of, they will produce the one new, that will inherit, or that will take the imprints of this first as well as the second folds. Okay, so before doing that, we should know about the fold morphology. What are the various things, or what are the various components of a particular fold, and जब डिफॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी चीजें हैं, that do which are the parameter that they get affected. Okay, so all of you know this is a particular fold. Okay, if someone asks what is the definition of fold, this is nothing, this is the crumpling of your beds, or strata, that is called your fold. ठीक है ना. अभी नॉर्मली जो हमारा सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्स रह के जो बेड बनाते हैं, दे इनिशियली ये हमारा अजम्पशन है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम the deposition and lithification, whatever the bed is there, the beds form horizontally. Okay, horizontal formation of your beds ऐसे होते हैं. Then due to some forces, tectonic forces, then if they are bending, okay, और ये bending को I am just simply saying crumple, okay, then they are called your folds. So fold का बहुत सारे चीज़ हैं. देखो, you can see this is fold का ऐसे limb है, you can see this is the limb of your fold, ठीक है ना, and this is the hinge, this is the fold axis, this is the fold. Okay, these are the limbs, this is the fold axis, and you can see this fold axis, this is one linear feature. I'll be focusing some particular things which we will be using in this session. Linear feature मतलब this is one line, ठीक है ना. If I'll say axial plane, you can see this is the axial plane, this plane. Okay, this is called your axial plane, ठीक है. And another thing, and whatever the trace we are getting on this one, on the axial plane, whatever the trace we are getting, that is called your axial trace. This is the inflection point from where if you are going up and down, then your dip that changes. Okay, that is called your inflection point. Then this is the hinge line, that is hinge, सबको पता है, that is the maximum curvature, ठीक है. This is the hinge line, or the trace of the hinge line. Okay, this is the inflection line, and this is the overall amplitude, ठीक है ना. amplitude, wavelength, ये complete, ये जो होता है starting from the crest to crest, that is called your wavelength, ठीक है ना. or you can say trough to trough, so that is one complete wavelength, ठीक है. these are the geometric parameter of a particular fold, ठीक है ना. geometric things of a particular fold, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो सुपर इम्पोजिशन फोल्ड में one fold will be, it will experience some deformation and it will change, ठीक है ना. अभी ये जो fold change हो रहा है, then how we can measure the change,
विल ट्राई टू मेजर द चेंज जियोमेट्रिकली, ठीक है ना, और मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच ऑफ चेंज इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। सो सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है? द 3 डायमेंशनल फॉर्म टेकन बाय एन ओरिजिनली planar surface or horizontal surface as a result of two sets of fold. When we are talking superimposed fold, initially जो horizontal है they will be folded, okay, this is one set, this is first set, and second set of deformation you can see two sets of fold. If two sets of fold they are interfering, देन वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न एक क्रिएट होगा एंड उसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिशन। पहले एक था, उसके ऊपर दूसरा एक इम्पोज कर रहा है, ठीक है। एंड ही इज प्रोफेसर टी के विश्वाल, IIT बॉम्बे, एंड यू कैन सी दिस इज वन फील्ड फोटोग्राफ, दिस इज वन फील्ड फोटोग्राफ वेयर यू कैन सी दैट दीज व्हाट आर दीज, ये फोल्ड कैसे हो रहा है, छोटे 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 कैसे हो रहे हैं, एंड व्हेन वी विल स्टडी दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्ड, then how this knowledge will be putting it to understand the nature, ठीक है ना। so this is called 3 dimensional form taken up by an originally planar surface as a result of two sets of fold. यहाँ पर जो सुपर इम्पोजिशन हम बता रहे हैं we are restricting our study up to 2 folds और 2 phases of deformation, ठीक है ना। अभी देखो अभी सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन है क्या। now superimposed deformation is defined as the impression of a late deformed structure on an early structure or early deformed structure. पहले एक स्ट्रक्चर था, फोल्ड ऐसे था, अभी उसके बाद now if it is experiencing another phase of deformation, दूसरा एक फोल्डिंग इवेंट if it is experiencing, तो उसको हम सुपरइम्पोज्ड फोल्ड बोलेंगे और सुपरइम्पोज्ड डिफॉर्मेशन बोलेंगे। what do you mean by fold? Fold is nothing but this is one deformation structure, डक्टाइल डिफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये है डक्टाइल डिफॉर्मेशन का रिजल्ट है फोल्ड, ब्रिटल डिफॉर्मेशन का फॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो इफ इट इज प्रीवियसली फोल्डेड, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये देखो ये एक फोल्ड है, ये प्रीवियसली ऐसे ही फोल्ड हो गया क्योंकि इनिशियली इट वाज हॉरिजॉन्टल, एक बार फोल्ड हुआ तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डिफॉर्मेशन इट हैज एक्सपीरियंस्ड। इसको मैं फिर से अगर रीफोल्ड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो superimposition of fold, or that is called your refold, ठीक है ना। so in case of superimposed deformation, stress regime changes from one direction to another direction. definitely अभी कोई एक चीज डिफॉर्म कैसे होगा? for deforming one particular solid you need some stress, ठीक है ना। stress, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन बाद में बढ़ेंगे, बट स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर बॉडी, है ना। सो एरिया विथ सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरफेरेंस पैटर्न। yes they will interfere if I am simply saying this is the orientation of one fold and this is the orientation of another fold, and if they are interfering then they will create one third pattern, that is the interference pattern. And geometry of the structure, why this geometry is important? Before that I was explaining what are the geometrical parameter of a fold, because this is one fold, this is another fold, after interference they will give one intermediate, ये दोनों का एक रिजल्ट आएगा, दिस विल बी अनदर फोल्ड। सो ये फोल्ड का क्या पैरामीटर था, ये फोल्ड का क्या पैरामीटर था, एंड व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस फोल्ड, द न्यू फोल्ड, एंड व्हाट इज द चेंज, जियोमेट्रिकल चेंजेस वहां पे क्या क्या चीजें, जियोमेट्रिकल चेंजेस वहां पे क्या क्या हुआ है, उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सुपरइम्पोज्ड फोल्डिंग, यहाँ पर देखो इन दिस केस S1, दिस इज योर S0, ओके, दिस वाज योर, ये तुम्हारा बेडिंग है, S0 को बेडिंग बोला जाता है, रिमेंबर S0 इज ऑलवेज द बेडिंग। यहाँ पर बेडिंग मेरा थोड़ा टिल्टेड है, इफ आई एम टेकिंग दिस एज S0 देन इट इज लिटिल बिट टिल्टेड। टिल्टेड क्यों हुआ है, मे बी कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, सब्सिडेंस हो गया होगा, देन वो S0 हो गया है। अभी बेडिंग को कैसे डिफाइन करोगे इन फील्ड में वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नाउ इफ S0 उसके बाद क्या हो रहा है कि इफ ये अगर प्रेस हो जाएगा देन दे विल बी फॉर्म S1, ठीक है। देन उसके बाद S1 अगर फिर से डिफॉर्म हो जाएगा, ये S1 ऐसे था तो S2 ये यहाँ पर देखो फिर से डिफॉर्म हो गया, सो दीज आर द S2। उसके बाद फिर से डिफॉर्म हो गया, दीज आर S3। तो इनिशियली इट वाज S0 and it experienced one deformation S1,
second S2, then S3. So what are the phases of deformation, number of deformation, order of deformation, ये सब चीज हम देखेंगे सुपरइम्पोज डिफॉर्मेशन में. ठीक है. सो एनवायरमेंट का मतलब क्या है, इन विच एनवायरमेंट वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस सुपर इम्पोजिशन फोल्डिंग और सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन. ठीक है. सो क्रॉसिंग ऑफ ओरोजेनिक बेल्ट, जहाँ पर पहाड़ है तो वहाँ पे सुपर इम्पोज फोल्ड मिल सकता है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल नाउ इट इज आवर हिमालयस. दिस इज माइटी हिमालयस. ठीक है. तो यहाँ पर कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है. ठीक है. सक्सेसिव डिफॉर्मेशन सेपरेटेड बाय वेरी लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल. okay, then successive deformational phases in one orogenic cycle. एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, दिस इज नॉट ए सिंगल फेज ऑफ डिफॉर्मेशन, मल्टीपल फेजेस ऑफ डिफॉर्मेशन होगा. एंड ओरोजन फॉर्म होने के लिए एक साइकिल है, एंड विद इन दैट साइकिल नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन वी कैन एक्सपीरियंस. सो वहाँ पे हम सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड, द सक्सेसिव डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग ए सिंगल प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन. सिंगल प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी कहीं पर फोल्ड बन जाता है तो एक साथ नहीं बन जाता है, धीरे 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 धीरे. दिस इज कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन. इफ द डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू, और इफ इट इज टेकिंग सम टाइम, ठीक है ना, देन दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन. उसका डिफॉर्मेशन वर्सेस टाइम अगर तुम ग्राफ बनाओगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफॉर्मेशन इधर बढ़ रहा है घट रहा है, तो दीज आर कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन. ये देखो अभी बढ़ रहा है, देन एक फेज आएगा, देन वो फिक्स हो जाएगा, फिर बढ़ेगा. सो दीज आर द ग्राफ वेयर यू कैन सी दिस इज योर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन. ठीक है ना, कंटिन्यूअस है. अभी डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद गैप, देयर इज नो डेटा, उसके बाद फिक्स, उसके बाद नो डेटा, उसके बाद डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर से फिक्स. सो दीज आर डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन. ठीक है ना. Then simultaneous folding in several directions during one deformation. अभी एक ही फेज में डिफॉर्मेशन हो रहा है, बट द स्ट्रेस रिजाइम इज चेंजिंग. द फोल्डिंग इन सेवरल डायरेक्शंस का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन से स्ट्रेस रिजाइम वो चेंज हो रहा है. इफ आई एम चेंजिंग द स्ट्रेस रिजाइम देन डेफिनेटली आई कैन क्रिएट वन, वहाँ पे मैं बना सकता हूँ सुपर इम्पोज फोल्ड. ठीक है ना. देखो सिंपल सा ये एक फोल्ड है, ठीक है, ये एक बेड है, तो इस डायरेक्शन में मैं उसको पहले स्ट्रेस दिया तो ऐसे बन जाएगा. ठीक है, 3D में. देन उसके बाद आई एम चेंजिंग द स्ट्रेस रिजाइम में ऐसे ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे डिफॉर्म होगा, है ना. सो द सेम थिंग, द सेम इवेंट, बट इफ आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन देन दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्ड. ठीक है. अभी सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन अभी राम से सबको पता होगा, राम से सर है, he is still alive I think. Ramsay discussed the conditions which would give rise the different patterns, and Ramsay classified the interference pattern into 4 basic types, जो हम पढ़ेंगे 4 basic types of interference pattern. And thirdly, Ramsay's model is applicable only if the latter folds are shear folds, ठीक है ना, and are superimposed on earlier cylindrical fold. अभी देखो सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये है कि कोई सा एक फोल्डेड लेयर है, उसके ऊपर अगर दूसरा फोल्डेड लेयर आके सुपर इम्पोज कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड योर सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्ड. ठीक है ना. अभी यहाँ पर जो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ वो क्लासिफिकेशन और पैटर्न उन्होंने जो क्रिएट किया है, यहाँ पर ये अजम्पशन है कि the lateral folds are shear folds and the earlier folds are cylindrical fold. उसको भी हम देखेंगे. If I will say कि नहीं मेरा पहले वो सुपर इम्पोज्ड हो गया था, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फोल्ड था ऐसे ऐसे था, ठीक है, माई फोल्ड वॉज लाइक दिस वॉज, यहाँ पर देखो दिस इज नॉट सिलिंड्रिकल. तो यहाँ पे इफ आई विल टेक दिस इज F1, देन अनदर आई विल टेक दिस इज F2, then whatever the interference pattern they will create, that will not be included within these 4 basic types, because ये जो 4 basic types है उनका interpretation और उनका जो primary assumption है that is different, जो कि ये है. ठीक है ना. इसको इन डिटेल में कभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी बोलना मुश्किल हो जाएगा. देखो he just classified 4 different types, that is type 0, type 1, type 2 and type 3. ठीक है. तो यहाँ पर you will have to see this is the F1, this is the F2 and this is the resultant 1 plus of 2.
ठीक है ना. if this is f1 fold and if this is the f2 fold, they are interfering, then they are creating a new interference pattern, new fold. ठीक है ना. टाइप वन में देखो, यहाँ पर देखो, ये ऑपराइट वर्टिकल है, ऑपराइट फोल्ड है, यहाँ पर ऑपराइट फोल्ड है, यहाँ पर देखो द रिलेशन. अभी यहाँ पर अभी हम देखेंगे इन सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्ड व्हाट आर द पैरामीटर्स दे आर गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है ना. अभी फोल्ड जियोमेट्री में कौन सा जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न में अफेक्ट हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, दे आर टेकिंग सिंपली द फोल्ड एक्सिस एंड द एक्सियल प्लेन. ठीक है ना. अभी एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड एक्सिस, दीज आर द टू मेजर एट्रीब्यूट्स इन रामसे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फोल्ड. ठीक है ना. तो दे जस्ट यूज दिस फोल्ड एक्सिस एंड एक्सियल प्लेन, ये दो पैरामीटर को लेते हैं. यहाँ पर देखो टाइप वन में, यहाँ टाइप वन में देखो दिस इज द f1 फोल्ड, दिस इज द f2 फोल्ड, एंड आफ्टर इंटरफेरेंस यू कैन सी हाउ दे आर क्रिएटिंग. इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोम बेसिन स्ट्रक्चर. डोम बेसिन स्ट्रक्चर ये कैसे होता है हम बताएंगे सब चीज. एंड टाइप टू में ये इसको बोलते हैं मशरूम, इसको बोलते हैं टाइप थ्री. इन दिस केस यू कैन सी दिस इज द अपराइट, दिस इज अपराइट, f1 अपराइट, f2 भी अपराइट, यहाँ पर f2 अपराइट, f2 अपराइट. इन दिस केस यू कैन से दिस इज रिलेटिवली, दिस एक्सियल प्लेन, दिस इज लाइक रिकम्बेंट टाइप हो रहा है. ठीक है ना. दिस इज रिकम्बेंट, दिस इज ऑल्सो रिकम्बेंट. रिकम्बेंट के साथ एक ऑपराइट आ रहा है एंड रिकम्बेंट के साथ ऑपराइट आ रहा है. देन वहाँ पर देखेंगे कि उनका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम विच डायरेक्शन दे आर गेटिंग एसोसिएटेड विद द f1, तभी जाके ये मशरूम होगा. एंड यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हुक शेप फोल्ड, हुक पैटर्न. ठीक है. इसका फील्ड डायग्राम भी हम दिखाएंगे. देखो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड प्राइमरी जो उनका अजम्पशंस है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. देन फोल्ड पैरामीटर्स दैट गेट अफेक्टेड बाय मल्टीपल डिफॉर्मेशन, दैट इज वन, the plane cylindrical. I also told you that the parameter is axial plane. ठीक है ना. axial plane and fold axis. अभी ये फोल्ड एक्सिस जो है वेदर इट इज सिलिंड्रिकल हो रहा है या फिर नॉन सिलिंड्रिकल हो रहा है. उसके बाद इफ इट इज एक्सियल प्लेन, देन दैट प्लेन इट इज प्लानर हो रहा है या फिर कर्व्ड हो रहा है. यहाँ पर देखो प्लेन सिलिंड्रिकल, हियर यू कैन सी दिस इज एक्सियल प्लेन इज प्लेन एंड दिस इज वन सिलिंड्रिकल फोल्ड. ठीक है ना. यहाँ पर देखो सिलिंड्रिसिटी नहीं है, द फोल्ड एक्सिस इज कर्व्ड, हियर द फोल्ड एक्सिस इज कर्व्ड. So this is non-cylindrical. This is the second and this is the first. Cylindrical. This is cylindrical and this is non-cylindrical. And remember here both of the axial plane are planar. ये देखो ये plane ही है. ठीक है ना. उसके बाद नॉन प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल, यू कैन सी यहाँ पर ये देखो एक्सियल प्लेन है, ये जो है ना दिस इज योर एक्सियल प्लेन. नाउ दिस एक्सियल प्लेन इज ऑल्सो गेटिंग कर्व्ड. ठीक है ना. सो दिस इज नॉन प्लानर and non-cylindrical. Non-cylindrical क्यों है, because this is the fold axis ना, fold axis is also getting curved. So this is non-plane non-cylindrical and here you can see non-plane cylindrical. यहाँ पर देखो axial plane यहाँ पर आएगा, this is the axial plane है ना. ऐसे आएगा axial plane, axial plane ये आएगा axial plane. एंड ये सिलिंड्रिकल क्यों है, इफ दिस इज द axial plane, यहाँ पर देखो ये लाइन सीधा है, मतलब फोल्ड एक्सिस तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रेट है. इफ फोल्ड एक्सिस इज स्ट्रेट देन दैट विल बी वन सिलिंड्रिकल फोल्ड. इफ द फोल्ड एक्सिस विल बी कर्व्ड देन दिस इज नॉन सिलिंड्रिकल, इसको नॉन सिलिंड्रिकल. तो द सिलिंड्रिसिटी दैट डिपेंड्स अपॉन दिस फोल्ड एक्सिस, सिलिंड्रिसिटी. ठीक है ना. एंड एक्सियल प्लेन ये प्लानर होगा या फिर नॉन प्लानर होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एक्सियल प्लेन. ये प्लानर होगा या फिर नॉन प्लानर होगा. ठीक है. सो दीज आर द टू पैरामीटर्स जो कि सुपर इम्पोज फोल्ड में चेंज होते हैं. उसके बाद देखते हैं द स्केल पैरामीटर. नाउ दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस फोल्ड इट कैन हैपन इन लाइक, यहाँ पर देखो मैप स्केल में अवेलेबल है, लार्ज स्केल यू कैन सी मैक्रोस्कोपिक, macroscopic, map scale or larger, this is macroscopic. Mesoscopic hand specimen to outcrop size, you can see this is one pane, we use the pane.
Okay, and this is also, you can see, sorry, this is 1 centimeter, so this is also mesoscopic. अभी mesoscopic features those are available to us, ठीक है ना। अभी कोई यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा होगा तो इतना छोटा हो जाएगा। नाउ ये क्या करेगा, एट ए टाइम इतना बड़ा एरिया को तो स्टडी कर नहीं सकता, और ये नाउ ही कैन स्टडी ओनली दिस पार्ट, इतना छोटा जो कि मेजोस्कोपिक में जो अवेलेबल है, ही कैन स्टडी दैट वन, एंड इसको लेके माइक्रोस्कोप में वो स्टडी कर सकता है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अभी देखो माइक्रोस्कोपी में काम करना मुश्किल है, अभी मैक्रोस्कोपिक में भी काम करना मुश्किल है, अभी वी कैन ओनली वर्क विद दिस मेजोस्कोपिक, एंड ये मेजोस्कोपिक में काम करने के बाद वट एवर द डेटा विल बी गेटिंग, that will represent or that will inform you about this map scale। छोटे एरिया से हम स्टडी करेंगे एंड इट विल हेल्प अस टू इंटरप्रेट एक होलसम एरिया का, एक बड़ा वाला एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है ना, अभी छोटा स्केल से जो भी हमें डेटा मिलेगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू द लार्जर स्केल। ठीक है ना, दैट्स वाई हैंड स्पेसिमेन और दिस आउटक्रॉप साइज, ये हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को दिस इज एसेसिबल, इसको हम पढ़ सकते हैं, एंड इसको पढ़ने के बाद वी कैन हेल्प कि क्या हो सकता है कि इन द लार्जर स्केल और इन लार्जर पिक्चर। तो स्मॉल स्केल में क्या क्या हो सकता है, इन दिस के स्मॉल स्केल इंटरफेरेंस पैटर्न में यू कैन सी, ये एक देखो बड़ा सा फोल्ड है, ठीक है ना, ये एक बड़ा सा फोल्ड है, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट ऑर्डर फोल्ड। यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फोल्ड। उसके बाद क्या हुआ, इफ इट इज फोल्डिंग अगेन, तो यहाँ पर देखो, ये देखो छोटा सा है, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर फोल्ड, दिस इज योर, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर पैरासिटिक फोल्ड। ऊपर से ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है दिस इज देखो थर्ड ऑर्डर पैरासिटिक फोल्ड। व्हाई दिस इज पैरासिटिक फोल्ड, पैरासिटिक फोल्ड इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि नाउ दिस फोल्ड इज प्रेजेंट ओवर द प्रीवियस वन, ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसका मतलब नाउ द डेवलपमेंट ऑफ दिस पैरासिटिक फोल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वन। अभी इसके चलते ये पैरासिटिक फोल्ड डेवलप हो गया है। ठीक है ना, एंड यू कैन सी द पैरासिटिक फोल्ड कितने टाइप्स के हो रहे हैं, यहाँ पर देखो जेड फोल्ड लिखा हुआ है, एस फोल्ड लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज लोकल वर्जेंस, अभी वर्जेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हियर यू कैन सी एम फोल्ड, इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल बेड, ओके, नाउ आई एम giving stress from this direction, so I am getting this fold, okay, and if this fold is again, if it is this fold is again it is refolded, or if there is one competence contrast, competence contrast मतलब क्या है, मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। इफ दो मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पर एक हार्ड रॉक है एंड यहाँ पर एक सॉफ्ट रॉक है, तो इफ आई विल अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, then the extent of their deformation will be different for this hard rock as well as this soft rock। अभी hard rock इतना जल्दी वो deform नहीं होगा, whereas the soft rock will deform more easily, then their response towards this particular applied stress will be very different। तो फोल्ड भी वहां पर अलग अलग बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, तभी उसमें क्या होगा कि देयर यू विल गेट सम पैरासिटिक फोल्ड्स, छोटे छोटे फोल्ड्स वहाँ पे डेवलप होंगी। ठीक है ना, ये बायोट सावर्ट लॉ ऑफ बकलिंग में पढ़ेंगे वो सब चीज़, वो जब मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग में आएगा तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इन दिस केस यहाँ पर पैरासिटिक फोल्ड डेवलप होगा एंड एस फोल्ड एंड जेड फोल्ड होता है। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे, एंड ये जो ऊपर यहाँ पर अगर एक छोटा सा फोल्ड आएगा, यहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड आएगा तो ऐसे ऐसे डेवलप होगा, है ना, ऐसे ऐसे डेवलप होगा। दिस इज योर जेड फोल्ड एंड दिस इज योर एस फोल्ड, यहाँ पर एस होगा, दिस इज योर एस फोल्ड। ठीक है ना, एंड ऑलवेज रिमेंबर अभी एस एंड ये ऊपर जो होगा ना, ऊपर यहाँ पर एम एंड डब्ल्यू होगा, एम और डब्ल्यू फोल्ड। एम इफ इट इज एट हिंज, ठीक है ना, बिकॉज मैं एंटीक्लाइन की बात कर रहा हूँ। अभी सिनफॉर्म में होगा तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा, एम एंड डब्ल्यू बोथ आर सेम, नियरली इक्वल टू सेम, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। एंड एस एंड जेड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये अगर एक बड़ा सा लिम्ब है तो वेदर वी आर इन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ द रीजनल फोल्ड और राइट लिम्ब ऑफ द रीजनल फोल्ड। अभी उस फोल्ड का क्लोजर किधर है, एस एंड जेड का इम्प्लीकेशन ये है दैट
towards which the closure is and in which limb you are still in. अभी देखो तुम इंसान यहाँ पर इतना छोटा होगा तो उसे कैसे पता चलेगा इफ दिस इज वन जियोलॉजिस्ट, ये यहाँ पे काम कर रहा है, देन ही इज गेटिंग दिस रीजनल फोल्ड, तो उसे क्या पता चलेगा? उसको तो ये एक नॉर्मल बेड जैसा लगेगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक एंड डिफ का वैल्यू मिल जाएगा। इफ ही इज गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन हियर, यहाँ से अगर कुछ डेटा ले रहा है देन उसको पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही डेटा है, और दिस माइट बी सम हायर ऑर्डर ऑफ फोल्ड। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर देखो ये जो बड़ा वाला फोल्ड है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फोल्ड, ये जो ये दिस कलर दिस इज सेकंड ऑर्डर फोल्ड एंड दिस इज द थर्ड ऑर्डर फोल्ड। सो फ्रॉम द वेरी माइन्यूट इंफॉर्मेशन यहाँ से वो पता कर सकता है कि हम एक रीजनल फोल्ड के कौन से लिम्ब में है, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है दैट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द फोल्ड, if you are moving towards the closure of the fold, whatever is present towards your right, that is always S fold, and whatever to the left, that will be your Z fold. यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो, S is always right, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये जो S है it will always be right, and Z जो है उसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। S and Z fold वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा एक्सियल प्लेन होगा, दिस विल बी योर एक्सियल प्लेन, ठीक है ना। नाउ हियर यू कैन से, एंड ये तुम्हारा एक्सियल प्लेन ऐसा हो गया एंड ये तुम्हारा बेडिंग प्लेन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तुम्हारा बेड्स, ऐसे ही तो बेड्स होंगे, ऐसे ही बेड्स होंगे। हियर यू कैन सी एक्सियल प्लेन एंड उसका जो क्लीवेज का रिलेशन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर एट द हिंज, ठीक है ना। व्हेन यू आर मूविंग डाउन अलोंग ए लिम्ब देन ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता है, यू कैन सी ये एंगल बढ़ रहा है ना। सो अभी तुम्हें यहाँ से ये पता चल सकता है कि इफ यू आर टेकिंग द रीडिंग करेक्टली देन यू कैन नो कि हम एक रीजनल फोल्ड के लिम्ब में है या फिर हिंज पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद एस एंड जेड फोल्ड को देख के तुम्हें पता चलेगा वेदर इफ वी आर इन अ लिम्ब पार्ट देन वेदर इट इज वन राइट लिम्ब ऑफ द फोल्ड और लेफ्ट लिम्ब ऑफ द फोल्ड। अभी तुम हिमालयन रीजन में जाओगे ना, एक एक फोल्ड 100 किलोमीटर का उसका वेवलेंथ होता है, एक एक फोल्ड का 100 किलोमीटर वेवलेंथ है, कैसे तुम कैलकुलेट करोगे वहां पे? देन यू विल हैव टू रिलाई ऑन दिस पैरासिटिक फोल्ड और स्मॉल स्केल फोल्ड, ठीक है। देखो फील्ड फोटोग्राफ्स यहाँ पर, दीज आर माई पर्सनल फील्ड फोटोग्राफ्स, यू कैन सी यहाँ पर क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई सिंपली टेल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, yes, can I say this is one fold, और ये ऐसा फोल्ड है, ये ऊपर कहीं चला गया है, यहाँ से फिर से आ रहा है, ये एक फोल्ड है। नाउ यू जस्ट सी हाउ कॉम्प्लेक्स आवर नेचर इज, ठीक है ना। अभी इसको हम कौन से फोल्ड में वहां पे क्लासिफाई करेंगे, आराम से का क्लासिफिकेशन के तौर पे, ठीक है ना, ये चीज हम देखेंगे। यू कैन सी अभी इसका एक्सियल प्लेन कैसा है, ठीक है, ऐसा होगा, दिस इज द एक्सियल ट्रेस, सॉरी एक्सियल ट्रेस, एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन फील्ड में जाके रीडिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सब डीप कर रहा है ये लिम्ब, ठीक है ना। सेकंड फोटोग्राफ्स यू कैन सी दिस, इनिशियली यहाँ पर क्या सीन है, इनिशियली इट वाज हॉरिजॉन्टल, उसके बाद इट गॉट फोल्डेड, उसके बाद यू कैन सी ये देख रहे हो, ये एक फोल्ड है, ये एक फोल्ड है, ये उसका एक्सियल प्लेन, ये उसका एक्सियल प्लेन, ठीक है। एंटीफोन सिनफोन तुम बता सकते हो, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन में नहीं बता सकता बिकॉज एंटीक्लाइन सिनक्लाइन वहाँ पे एज के बेसिस में वो बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर फोल्ड, हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखो एस एंड जेड थोड़ा थोड़ा दिख सकता है। इफ यहाँ पर देखो दिस इज द ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर फोल्ड, देख रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर फोल्ड। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये देखो ये छोटे 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 ऐसे हो रहे हैं ना, छोटे 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 फोल्ड हो रहे हैं, तो ये सब एस है, एस ऐसे दिखेगा, एस एस ऐसे दिखेगा, ये देखो एस, ये देखो यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये देखो एस। तो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर वट एवर प्रेजेंट टुवर्ड्स योर राइट देन दैट इज योर एस फोल्ड, ठीक है। एंड दोज आर पैरासिटिक फोल्ड। एंड यहाँ पर देखो बुडिन, इसको बुडिन बोलेंगे, दीज आर योर बुडिन, ये देखो डिटैच हो गया है, डिटैच्ड बुडिन,
तो और एक भी चीज़ ये है कि अभी हम फील्ड में, इफ यू आर गोइंग टू आवर फील्ड, देन हाउ यू विल नो दैट दिस फील्ड हैज एक्सपीरियंस्ड सम सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन। तो क्या क्या क्राइटेरिया है फील्ड में, हमें क्या चीज़ मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सुपर इम्पोज फोल्ड हुआ है। देखो यहाँ पर ये डिटैच्ड बुडिन, दोज आर ऑल्सो एग्जाम्पल कि वहाँ पे सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन हुआ होगा। एंड रिमेंबर यहाँ पर जो सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट लाइक कि यहाँ पे एक फोल्ड था और दूसरा फोल्ड आके सुपर इम्पोज किया है। ऐसा भी हो सकता है फॉर सुपर इम्पोजिशन, इफ द स्ट्रेस रिजाइम इज चेंजिंग, इफ द स्ट्रेस रिजाइम इज चेंजिंग, देन वहां पर भी सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चॉकलेट बुडिन स्ट्रक्चर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ योर फोल्ड यू कैन क्रिएट दोज थिंग्स बाय चेंजिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रेस रिजाइम। ठीक है ना। यहाँ पर देखो और थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो कितने टाइप के फोल्ड है। ये देखो ये देख रहे हो, इसका ये कितना मोटा है, और यहाँ पर देखो ये कितना पतला है, कितना पतला है, ये कितना पतला है, ये कितना पतला है। अभी हमारे किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये इतना पतला है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द थिंग इज दैट यू मस्ट नॉट नेग्लेक्ट इफ यू आर ए प्योर जियोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट, क्योंकि दीज द स्मॉल थिंग्स दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द लार्जर पिक्चर। ठीक है, आते हैं उसके बाद सिमेट्री आ गया। मैं एम एंड डब्ल्यू के बारे में बता दिया हूँ। एम एंड डब्ल्यू दीज आर सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ से कोई सा भी डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। एंड एसिमेट्रिक इफ इट इज जेड एंड एस, देन वहां से एसिमेट्रिक फोल्ड का पता चलेगा। सिंपल सी बात ये है कि इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर, वट एवर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स योर राइट, दैट इज योर एस फोल्ड। ऑलवेज रिमेंबर एस इज ऑलवेज राइट। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पर सुनील है, तो सुनील इज ऑलवेज राइट। ठीक है, चलो। और पैरासिटिक फोल्ड ये देखो, हाँ ये और भी एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है सर, आपने बताया कि हो गया कि सर ये जो राइट साइड है ये अभी हमारा एस फोल्ड है, और एस है तो दिस इज योर राइट लिम। ठीक है ना, दिस इज आवर राइट लिम और दिस इज योर लेफ्ट लिम। तो लेफ्ट लिम में क्या है, यहाँ पर जेड रहेगा। एस लिम में, राइट लिम में यहाँ पर एस फोल्ड रहेगा, एस पैरासिटिक फोल्ड। सर व्हाट इफ मैं बोलूँगा कि सर ये फिर से फोल्ड हो गया, ये फिर से फोल्ड हो गया इस डायरेक्शन से, एक्सियल प्लेन जाके यहाँ से प्रेशर आया तो ऐसे फोल्ड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलूँगा कि ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये जेड है, ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये फोल्ड ऐसा था, ये जो फोल्ड है ये ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है ना। तो अभी मुझे बताओ कि सर ये तो पूरा लिम्ब ही हमारा राइट लिम्ब था जिसमें पूरा एस फोल्ड ही दिख रहा था। ये पूरा लिम्ब हमारा, ये इसको छोड़ दो, इसको ही अभी देखो। मैंने बताया कि ये फोल्ड, ये जो लिम्ब है, दिस इज द राइट लिम्ब एंड हियर वी आर गेटिंग एस फोल्ड। व्हाट इफ स्ट्रेस रिजाइम चेंज हो गया या फिर सुपर इम्पोजिशन हो गया, तो ये जो हमारा राइट लिम्ब है ये अभी फिर से रिफोल्ड हो गया। तो चलो ये रिफोल्ड होके ऐसे ब्लू वाला हो गया। तो आप सर अभी बताइए कि ये तो हमारा एस फोल्ड था, तो अभी यहाँ पर हम ऐसे क्लोजर में जाएंगे, क्लोजर में जाएंगे तो ये वाला तो सर हमारा एस फोल्ड होगा राइट साइड में, ये हमारा अभी एस होगा, है ना, ये एस होगा। और ये क्या होगा, ये हमारा जेड फोल्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। तो अभी बताइए कि ओवरऑल एस फोल्ड राइट लिम्ब में था, अभी एस फोल्ड के ऊपर फिर से हमें जेड मिल रहा है। ये उसी राइट लिम्ब का जहां पर एस फोल्ड था उसी के ऊपर अभी हमें जेड मिलेगा, एंड उसी के एस के ऊपर, उसके ऊपर हमें फिर से एस मिलेगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मिलेगा जेड, जेड ऑन एस, यहाँ पर क्या होगा, एस ऑन एस। अभी यहाँ पर ऐसे अगर फोल्ड हो गया है तो इसमें क्या होगा, ये हो गया, दिस इज योर एस फोल्ड, यहाँ पर मिलेगा दिस इज एस, दिस विल बी एस ऑन जेड एंड दिस विल बी जेड ऑन जेड। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट थिंग है पैरासिटिक फोल्ड। अभी इसको कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर देखो। एंड अनदर थिंग इज दैट दिस पैरासिटिक फोल्ड इट कैन डेवलप एनीवेयर, anywhere in the sense where more number of at least two phases of deformation is necessary for the parasitic fold to develop. Okay, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ at least two phases of deformation is necessary, two phases of deformation is necessary for the formation of this parasitic fold.
एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा क्रेनुलेशन क्लीवेज। क्रेनुलेशन क्लीवेज जो होता है दैट इज वन टाइप ऑफ पैरासिटिक फोल्ड, जो कि मिनिमम और एटलीस्ट 2 phases ऑफ डिफॉर्मेशन उसको चाहिए. So if you are getting any parasitic fold, then that implies that region is supposed to experience at least 2 phases of deformation. ठीक है, अभी देखो टाइप 0 को छोड़ दो, देखो टाइप 1 फोल्ड में भी हमें पैरासिटिक फोल्ड मिलेंगे, टाइप 2 में भी मिलेंगे, टाइप 3 में भी मिलेंगे. आई जस्ट एक्सप्लेन दोज थिंग्स. यहाँ पर देखो ये एक फोल्ड हो गया, ठीक है, क्लोजर के तरीके तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज आवर राइट लिम्ब और यहाँ पर एस मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जेड मिलेगा, समझ रहे हो. तो उसके बाद इसके ऊपर फिर से इफ इट इज डिफॉर्मिंग तो क्या होगा, तो एस ऑन जेड, जेड ऑन एस, ये सब चीजें फिर से आएंगी. तो यहाँ पर देखो जेड ऑन एस. अभी जेड जो है ये बाद में आया, पहले क्या था एस, एस के ऊपर जेड सुपर इम्पोज किया है. और दीज आर like I have explained, these are the small scale interference pattern, and from this small scale interference pattern we will see the large picture. ठीक है ना. तो स्मॉल स्केल इंटरफेरेंस पैटर्न में पैरासिटिक फोल्ड्स आते हैं. यहाँ पर देखो S on Z on S, S on Z, and these are the number of possibilities, 3 cross of 3. ठीक है. अभी देखो यहाँ पर कोई बोल सकता है सर यहाँ पे W क्यों नहीं लिए, तो M एंड W दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्शन का कोई इधर उधर नहीं होता है, तो इसमें W ले सकते हो. इफ यू आर टेकिंग सिन फॉर्म, सॉरी इफ यू आर टेकिंग एंटी फॉर्म इट विल बी M, इफ यू आर टेकिंग द सिन फॉर्म दैट विल बी W. बट S एंड Z विल बी रिमेन द सेम, वेदर इट इज सिन फॉर्म में भी जा रहे हो, इधर जा रहे हो इस साइड राइट में S इज ऑलवेज राइट, यहाँ पर भी आ रहे हो तो S इज ऑलवेज राइट. ठीक है. तो एंड दीज आर, देखो यहाँ पर एक लेयर है पैरासिटिक फोल्ड, दिस इज एस ऑन एस. यहाँ पर ओवरऑल तुम्हें दिख रहा है ना, एस जैसे दिख रहा है, ओवरऑल एस जैसे दिख रहा है. तो अभी ये जो चीज दिया गया है ये क्या है, दिस इज द सुपर इम्पोज फोल्ड और दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि हो गया है. पहले एस था, एस के ऊपर फिर से और एक एस डेवलप हो गया, ठीक है ना. अभी हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसमें पहले एस था कि नहीं था, तो इसको हम फिर से उसको क्या बोलेंगे, डी फोल्ड करेंगे, ठीक है ना. अभी डी कोड करेंगे या फिर डी फोल्ड करेंगे, फोल्ड हो गया है, अभी रिफोल्ड नहीं, जो फोल्ड हुआ है उसका इनिशियल पोजीशन में लेके आएंगे. तो इनिशियल पोजीशन में लेके आने का क्या मतलब, कैसे करोगे, देखोगे कि यहाँ इसका क्लोजर किधर है. इफ यू विल सी वेरी क्लोजली यू सी ये ऐसे आया हुआ है, ये ऐसे आया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लोजर है, उसके बाद ये फिर ओवरऑल ये हमें एस जैसे दिख रहा है, ठीक है ना. तो फाइनल जो हमारे पास आउटपुट जो है दैट इज आवर एस फोल्ड. अभी एस किसके ऊपर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर ये जो तुम्हारा क्लोजर है ना, क्लोजर को पकड़ के, दिस इज द लिम्ब, क्लोजर के बाद दिस इज द लिम्ब ना, तो इस लिम्ब को अभी तुम्हें सीधा करना पड़ेगा. ये दिस इज द क्लोजर, ये क्लोजर के बाद इस लिम्ब को तुम्हें सीधा करना पड़ेगा. अभी देखो ये देखो ऐसे हो गया ना, दिस इज एस. तो इनिशियली ये एस था और उसके बाद जो उसके ऊपर इंटरफियर किया है वो भी एस ही है. यहाँ पर देखो ये एस है ना, एस हमें दिख रहा है, ये तो एस ही है. सो दिस इज एस ऑन एस. एंड यहाँ पर एक सिंगल लेयर ही लिया गया है, लेयर मतलब एक लाइन में ही मैं उसको लिया हूँ, थिकनेस नहीं लिया हूँ. यहाँ पर देखो एम ऑन एस, ओवरऑल हमें रीजनली एम दिख रहा है, सो एम फोल्ड बाद में आया है, ठीक है ना. अभी ये एस के ऊपर है कि जेड के ऊपर है, तो यहाँ पर देखो यू विल हैव टू टेक द क्लोजर. यहाँ पर देखो क्लोजर कहाँ पर है, ये क्लोजर है, यहाँ पर ये क्लोजर है. अभी ये लिम्ब को अभी तुम सीधा कर दो, अगर इसको सीधा करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये लिम्ब ऐसे ऊपर चला जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज अनदर एस, एस, दिस इज एम ऑन एस. ऐसे ही चीजें दिया गया है, ऐसे ही चीजें दिया गया है. हियर यू कैन सी एस ऑन एम, एम ऑन एम, जेड ऑन एम, ठीक है. देन एस ऑन जेड, एम ऑन जेड, जेड ऑन जेड, यू कैन सी दोज थिंग्स, ठीक है ना. एंड मिस्टर एस के साहू, दिस इज एस डॉट के डॉट साहू, यू कैन सी his signature and today's date also. We requested him and he just drew it with in free hand में उन्होंने draw किया, and this is the date, this is the today's date, and he gave it to us, so we'll be very thankful to him. यहाँ पर देखो सेम चीज उसको लेयर बनाए हैं, ठीक है ना. ही इज इन GSI
So he is a very good field geologist. So in this case you can see that he has taken this picture again, ठीक है ना, ये खुद ही बनाया है. एंड एस ऑन जेड, एस ऑन जेड, अभी देखो वहां पर एस ऑन जेड लिखा हुआ था, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस ऑन जेड, सॉरी जेड, जेड ऑन जेड, ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना. एंड ऐसा वाला डायग्राम एस ऑन जेड, जेड ऑन एस, एम ऑन जेड, तो ये डायग्राम कहीं पे नहीं मिलता है. मतलब इवन दिस बुक इज, दिस डायग्राम इज फ्रॉम आराम से बुक, तो वहां पर इतना ही चीज दिया गया है. No, not even a single book they are giving these diagrams. So I think this diagram will be very much helpful for you guys to understand the things better. Okay, यहाँ पर देखो इंडिविजुअल लेयर को दिया है m on m. ओवरऑल इट इज शोइंग लाइक दिस इज m जैसे दिख रहा है, तो ओवरऑल द फोल्ड इज m. अभी m किसके ऊपर डेवलप किया है, क्लोजर को पकड़ो, ठीक है, क्लोजर को पकड़ो, 3 क्लोजर, देन लिम्ब को सीधा कर लो. दीज आर द, इफ ये वाला लिम्ब ऐसे हुआ है ना, ये फोल्ड होने के बाद हुआ है, अगर फोल्ड नहीं होता तो ये तो सीधा ही होता, ठीक है ना. तो ऐसे करके यू विल सी दैट ऑन व्हिच व्हाट वाज द इनिशियल, प्राइमरीली जो पहले जो फोल्ड था उसका ओरिएंटेशन क्या था, ठीक है ना. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद क्या होता है कि जो सुपर इम्पोज फोल्ड में इफ सम सुपर इम्पोजिशन इज हैपनिंग, देन कुछ प्लानर फीचर है जो कि मैंने तुम्हें बताया, दैट इज द एक्सियल प्लेन, ठीक है ना, दैट इज द एक्सियल प्लेन. एंड अनदर इज योर लिनियर फीचर जो कि तुम्हारा फोल्ड एक्सिस है, ठीक है ना. अभी इन दोनों का कुछ ऐसे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं. एंड यहाँ पे व्हाई आई एम एडिंग दिस, बिकॉज वट एवर यू अंडरस्टैंड देन यू विल हैव टू स्टेरियो प्रोजेक्ट इट, यू विल हैव टू प्रोजेक्ट इट ऑन द स्टेरियोग्राम, है ना. तो यहाँ पर कैसे फोल्ड एक्सिस, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज चेंजिंग, देन हाउ इट इज चेंजिंग इन द स्टेरियोग्राफ. एंड इफ द एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो वो चेंज कैसे हो रहा है. दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस. आई विल बी नॉट कवरिंग हियर बिकॉज अदरवाइज इट विल बी ए वेरी लॉन्ग क्लास. दिस इज फ्लूइडिक क्लासिफिकेशन. एंड फ्लूइडिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये है बिकॉज द फ्लूइडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन ऑफ डीप ऑफ द एक्सियल सरफेस एंड प्लंज ऑफ द हिंज लाइन. Plunge of the hinge line. Remember, plunge is the amount it is of a line. And remember, this plunge, it will be measured always in a vertical plane. Vertical plane. अगर if this is one fault, if I am simply saying कि एक लाइन होना चाहिए, तो ये लाइन कहाँ पर रहेगा, एक प्लेन के ऊपर रहेगा, है ना. if this is the line, तो ये एक प्लेन के ऊपर रहेगा. दिस इज द फॉल्ट प्लेन के ऊपर लाइन है. अभी ये लाइन को अगर इफ दिस इज द स्ट्राइक ऑफ द बेड, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन, सॉरी स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन, एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड योर रेक और पिच. एंड रिमेंबर, रेक और पिच that will be calculated on the inclined plane. Inclined plane in the sense on the plane on which the line is there. Okay, if we want to calculate the plunge, that will be calculated on the vertical plane. Vertical plane मतलब ये जो line है इसी के direction में you will have to create, ये देखो इसको मैं थोड़ा extend कर देता हूँ, and you will have to create one vertical plane containing this. You will have to create one vertical plane that will contain that line within it. Then along this plane you will have to raise this. तो ये जैसे इक्वली मतलब क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा. तो ये वर्टिकल जो ये दिस एंगल, द एंगल मेजर्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑन विच दिस लाइन इज लाइंग to the equatorial, to the horizontal plane, this angle is called your plunge. ठीक है, this is called your plunge. वो वर्टिकल प्लेन में कैलकुलेट होगा, ठीक है. एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा, जैसे स्ट्राइक देख रहे हो, ठीक है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल स्केल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है. एंड रिमेंबर, इन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑल ऑफ यू नो वर्टिकल प्लेन कहाँ पर होते हैं. दिस इज वन वर्टिकल प्लेन, दिस इज अनदर वर्टिकल प्लेन, एंड प्लेन 90 डिग्री में होते हैं. If some plane I am drawing is like this, then this is one inclined plane. And here you can see
that this is the upright fold, this is the deep of the axial surface. When the deep is 0, deep of the axial plane is 0, that implies horizontal. Deep of the axial plane of a fold is 0, then that is horizontal. 0 to 10 डिग्री के अंदर रहेगा तो उसको हम रिकम्बेंट फोल्ड बोलेंगे. From recumbent fold to upright fold, here you can see the deep of the axial plane is increasing 10, 30, 60, 80 and 90. And I have told you that axial plane ये जो है, this is your horizontal plane. ठीक है ना. horizontal plane मतलब वहां पे deep 0 होगा. यहाँ पर देखो, this is the deep of the axial plane. ठीक है ना. उसके बाद धीरे धीरे deep बढ़ रहा है, धीरे धीरे डीप बढ़ रहा है. इफ डीप इज इंक्रीजिंग, यहां पर देखो ये ऐसे था, उसके बाद डीप बढ़ गया, धीरे धीरे आया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इफ एनीथिंग, अभी यहां पर मैं अगर और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, दैट विल बी गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री प्लेन. एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक वर्टिकल प्लेन होगा वहां पे. ठीक है. तो प्लेन कैसे चेंज हो रहा है, प्लेन जैसे चेंज हो रहा है. And if I will see कि what is the plunge of the hinge line, plunge of the hinge line or the fold axis, अगर हम देखें hinge line and fold axis दोनों अलग अलग होते हैं, but still I am taking here the fold axis. ठीक है ना, क्योंकि सुपर इम्पोज फोल्ड में हम फोल्ड एक्सिस को कंसिडर करेंगे. प्लॉन्ज ऑफ द हिंज लाइन, देखो यहाँ पर ये डॉट देख रहे हो, धीरे धीरे देखो ये डॉट देख रहे हो, ये डॉट, ये डॉट, धीरे धीरे ये डॉट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे आ रहा है. इन दिस केस देखो द प्लंज इज 0 डिग्री, ये दोनों डॉट इधर है. When it is increasing some amount, gently plunging 30 डिग्री आ रहा है, तो ये देखो फोल्ड एक्सिस अभी धीरे धीरे मूव कर रहा है अंदर. एंड आराम से देखो कि जो फोल्ड एक्सिस है वो मूव कर रहा है किसके ऊपर, एक प्लेन के ऊपर. हियर इफ आई विल से ये एक प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर ही पॉइंट जाएगा. अभी मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं दे सकता हूँ, दिस इज नॉट द फोल्ड एक्सिस. फोल्ड एक्सिस विल लाई ऑन द एक्सियल प्लेन, तो एक्सियल प्लेन के ऊपर ही फोल्ड एक्सिस रहेगा. ठीक है ना. तो फोल्ड एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है एंड एक्सियल प्लेन कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आफ्टर सुपर इम्पोजिशन जब हम उसको स्टीरियो प्लॉट में डालेंगे तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पहले से ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. ये तो वर्टिकल और राइट ये जो चीजें हैं वही वाला डायग्राम है. एंड हियर इन वन पीडीएफ विल हैव टू कवर एवरीथिंग फॉर द सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्ड. ठीक है. दिस इज रामसे क्लासिफिकेशन. तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोल्डिंग में क्या होता है, यू विल हैव टू सी देयर इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. ठीक है. हियर यू कैन सी दिस इज वन अपराइट फोल्ड, दिस इज अपराइट फोल्ड. टाइप 0 एंड टाइप 1 में चारों का सब अपराइट ही होगा. दिस इज द F1, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F2. F1 F2 मीन्स दिस इज फोल्ड 1, फोल्ड 2. ठीक है ना. In this case this is upright, this is upright. Here this is upright and ये भी upright है, लेकिन ये ऐसे जाता है डायग्राम में. तब this is my like मास्टर्स का नोट है, तो ये ऐसा है. this is the direction. ठीक है ना, जहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होगा. द फर्स्ट केस अभी टाइप 0 में ये भी upright है, upright है. ठीक है. उसके बाद ये दोनों भी upright है. जब टाइप 2 एंड टाइप 3 में ये रिकम्बेंट होगा, ये रिकम्बेंट है, ये रिकम्बेंट है, दिस आर द F1 रिकम्बेंट है. एंड उसके बाद ये हो गया तुम्हारा अपराइट. ठीक है ना. ये देखो ये इसका मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड हियर इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा. तो इसको हम कैसे प्लॉट कैसे करेंगे, पर इजी मतलब हम अभी इसको प्लॉट करना सीखेंगे. ठीक है ना. तो टाइप्स सिर्फ हम सीख रहे हैं. ठीक है ना, अभी उसके अंदर अभी गए नहीं. तो सर ये ऑपरेट हो गया, ये हो गया, तो ऑपरेट ऐसा नहीं. पहले तो 0 एंड 1 के लिए ऑपरेट होगा एंड इसके लिए F1 रिकम्बेंट होगा. चलो ठीक है, बना दिए. उसके बाद इसके लिए क्या होगा, ऑपरेट होगा. ठीक है, सेम डायरेक्शन में. उसके बाद ये भी ऑपरेट होगा, लेकिन इट विल बी इन 90 डिग्री. ये एंड ये 90 डिग्री होगा. ठीक है. उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर ऑपरेट होगा, देन इट विल बी इन 90 डिग्री. ये एंड ये 90 डिग्री होगा. ठीक है. एंड हियर इट विल बी पैरेलल, ये यहाँ पर इसके अंदर घुसेगा. ठीक है. दिस इज 0 1 2 3 ऐसे ओवरऑल लिख लेंगे पहले. ठीक है, क्योंकि
वहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इन टाइप 2 फोल्ड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर F1 फोल्ड. When it is asking F1 fold का orientation, you will have to write down what is the axial plane orientation and what is the fold axis orientation. ठीक है ना. इफ आई विल से यहाँ पर एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड एक्सिस कैसा है, एक्सियल प्लेन इज प्लेन है, ठीक है ना, एंड इसका एक्सियल प्लेन, अभी देखो इसका एक्सियल प्लेन, इसका एक्सियल प्लेन, द ओरिएंटेशन इज लाइक दैट. इन इंटरफेरेंस ऑफ टाइप 1 the axial plane of the F1 fold and the axial plane of the F2 fold, they will be perpendicular. This is the orientation or this is the orientation for F1 fold. ठीक है ना. अभी F2 एंड F3 में पूछ लेगा F1 का ओरिएंटेशन क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा इट विल बी वन रिकम्बेंट फोल्ड where the axial plane is near horizontal and the fold axis that is parallel, और parallel in the sense that is cylindrical, सीधा होगा. ठीक है. देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसी एक में सारा का सारा चीज़ कवर ऑफ हो गया है. देखो यहाँ पर एक फ्लो डायरेक्शन दिया गया है. ज़्यादातर फ्लो डायरेक्शन के बारे में बताते नहीं हैं लोग. इट इज़ नॉट इवन लाइक ओनली रैमसे में ये फ्लो डायरेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है एंड प्रोफेसर टीके विस्वाल ही यूज टू फॉलो दिस फ्लो डायरेक्शन. ठीक है. बाकी किसी को अगर हम बोलते हैं तो आई थिंक दे डोंट नो या फिर दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. That is a different thing, but if I know then I will explain what is flow direction. Flow direction is the material flow direction. ठीक है ना, material flow direction. Axial plane and flow direction बहुत सारे केसेस में parallel होते हैं, but कहीं पे वो अलग भी हो सकते हैं. ठीक है. It should be carefully understood. देखो in this case for type 1, what is the orientation of F1? F1 fold is upright and F2 fold is also upright and F1 axial plane and axis are perpendicular. Axial plane, you can see this is the axial plane of F1 and fold axis, this is the fold axis. ठीक है ना, ये perpendicular है axial plane and fold axis. and flow direction parallel. ये देखो flow direction F1 and F2 का flow direction parallel है. in this case you can see the orientation of the fold axis, इसका fold axis and axial plane of F1 fold will be perpendicular to, this is the F2 का axial plane है ना. ये F2 का axial plane हो गया, this is F1 का axial plane. axial plane भी perpendicular है and fold axis भी perpendicular है F1 and F2 का. ठीक है. but flow direction are parallel. You can see flow direction are parallel, so or low angle. So in this scenario the interference pattern will be, it will create dome and basin structure. in the coming slides we will see with diagram. ठीक है. and one dome is surrounded by 4 basins. इसमें amplification and nullification होता है. ठीक है ना. डोम एंड बेसिन, जहां पर डोम बनेगा वहां पे एम्पलीफिकेशन हो गया और जहां पे बेसिन बनेगा वहां पे नलिफिकेशन हो गया. ठीक है. एंड इन टाइप 0 में क्या होगा, ये भी ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही आएगा. तो ये क्या होगा कि इसमें एम्पलीफाई होगा या फिर नलिफाई होगा. इफ ये सिनफॉर्म सॉरी एंटीफॉर्म के पास एंटीफॉर्म जा रहा है और दे आर इंटरफेयरिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल एम्पलीफाई और बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना. इफ इसके एंटीक्लाइन के पास इसका सिनक्लाइन आ रहा है इंटरफियर करने के लिए, देन वो नलिफाई हो जाएगा. ठीक है ना. अभी टाइप 2 में देखो, टाइप 0. अभी टाइप 1 में किसी को कुछ दिक्कत है, डायग्राम जब दिखाएंगे चीजें और इजी हो जाएगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीवन प्लीज. इसको डाउट है क्या? नो डाउट. ओके. उसके बाद F2 में क्या होता है. अभी F1 में क्या हो गया, F1 में तुम्हें मिलेगा डोमेन बेसिन स्ट्रक्चर. उसको मैप में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं सब चीज देखेंगे. अभी F2 में क्या हो रहा है, इन दिस केस यू कैन सी F2 में ये हो गया तुम्हारा रिकम्बेंट फोल्ड. ठीक है ना. अभी जिसका फोल्ड एक्सियल प्लेन अभी नियर हॉरिजॉन्टल है. F1 इज योर रिकम्बेंट फोल्ड एंड F2 इज योर अपराइट फोल्ड. and F1 and F2 का axial plane perpendicular है. you can see this is the axial plane and here this is the axial plane.
ठीक है ना। तो एक्सियल प्लेन ओवरऑल परपेंडिकुलर है कि नहीं। एक्सियल प्लेन ऑफ F1 एंड F2 एक्सियल प्लेन आर परपेंडिकुलर एंड F1 एंड F2 एक्सेस आर परपेंडिकुलर ऑल्सो। ये देखो उसका एक्सेस है, ये इसका एक्सेस है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, बट फ्लो डिरेक्शंस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर हाई एंगल। यहां पर देखो दो चीज मैं बताना चाहता हूं। इन दिस केस F1 एंड F2 का एक्सियल प्लेन एज वेल एज देयर फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो एक्सियल प्लेन भी परपेंडिकुलर है एंड फोल्ड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। इन दिस केस ऑल्सो एक्सियल प्लेन भी परपेंडिकुलर है, फोल्ड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा हम। दैट्स वाई फ्लो डिरेक्शन देखो, इन दिस केस फ्लो डिरेक्शन इज पैरेलल बट हियर द फ्लो डिरेक्शन इज परपेंडिकुलर। तभी हमें पता चल जाएगा कि एक फोल्ड रिकम्बेंट है और दूसरा फोल्ड अपराइट है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्लो डिरेक्शन। ठीक है ना। तो अभी इस डिरेक्शन में वो अंदर चला जाएगा। देखो भाई इसको देखो ना, इफ इट इज मूविंग इन दिस डिरेक्शन तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा ना, ऐसे सिक्कल शेप बना देगा। दिस डायग्राम सिक्कल शेप बना देगा। तो दिस इज द F1, तो फोल्ड एक्सिस ऐसा था। अभी F2 का एक्सियल प्लेन ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो दिस विल क्रिएट वन सिक्कल और क्रिसेंट और सिक्कल और क्रिसेंट और इसको क्या बोलते हैं, मशरूम टाइप बोलते हैं, मशरूम रॉक बनेगा बनाएगा। अभी बात यह है कि मशरूम कैसे बनाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे मतलब पढ़ाने के टाइम में बोल देते हैं कि मशरूम मतलब क्या, ऐसा होगा ना, मशरूम ऐसा होना चाहिए। अभी देखो अभी यहाँ पर फोल्ड एक्सिस ऐसा है रिकम्बेंट वाला। ठीक है ना। अभी क्या है कि इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं, इफ वी आर कटिंग दिस देन हमें इतना ही देखने को मिल रहा है। ठीक इतना ही देखने को मिल रहा है, मतलब मशरूम का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, सर ये स्टेम नहीं दिख रहा है अभी भी। इफ यू आर कटिंग मोर, अभी यहाँ कट करोगे और इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है, कट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके इट विल मीट दिस ईयर, तो वो स्टेम यहाँ पर दिखेगा। ठीक है ना। तभी इसको मशरूम टाइप बोलते हैं। मशरूम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस जो फाइनल रिजल्ट होगा इट विल बी वन मशरूम टाइप। नहीं तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस फोटोग्राफ से हमें पता चला सर ये तो बस इतना ही दिख रहा है, सर मशरूम कैसे हो गया। इसको तो आधा चांद बोल सकते हैं हम। मशरूम होगा तो ये स्टेम भी दिखेगा। अभी इसको और इरोड करोगे और इरोड करोगे तो पीछे वो स्टेम दिखेगा। ठीक है। उसके बाद टाइप 3, इसमें F1 इज रिकम्बेंट एंड F2 इज अपराइट एंड यू कैन सी दिस इज द ओरिएंटेशन। ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन से जाएगा, तो इस डायरेक्शन से अगर जाएगा तो ये कैसे बनाएगा, ऐसे आ जाएगा इस साइड, मतलब ऐसे फोल्ड हो गया, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक साइड में क्लोजर बना रहा है ना। इट इज क्रिएटिंग वन साइड क्लोजर, ये वन साइड क्लोजर, वन साइड क्लोजर। एंड F2 जो है ये इधर है, दिस इज द F2। F1 किधर है, F1 इज दिस वन। ठीक है ना। ये F1 है, ये F1 है कि नहीं। तो ये हुक जैसे बनाता है, यहाँ 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 यहाँ, हुक, हुक बन गया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हुक पैटर्न। एंड यहाँ पर F1 एंड F2 का एक्सियल प्लेन परपेंडिकुलर है। देख लो परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये देखो इसका एक्सियल प्लेन ऐसा है, इसका एक्सियल प्लेन ऐसा है। देखो स्ट्रक्चरल में और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा इमेजिनेशन एंड योर डायग्राम्स, डायग्राम बनाना हमेशा, डायग्राम काटना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये हुक पैटर्न हो गया। एंड एक्सेस आर पैरेलल, ये भी देखो फोल्ड एक्सिस इधर ऐसे है, इसका फोल्ड एक्सिस ऐसे है, पैरेलल हो गए। एंड फ्लो डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, इसका फ्लो डायरेक्शन ऐसा है एंड इसका फ्लो डायरेक्शन ऐसा है, तो परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है। तो इसको को बोलते हैं वो हुक पैटर्न और को एक्सियल फोल्डिंग, इसको बोलते हैं को एक्सियल फोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सेस सॉरी फोल्ड एक्सिस ये पैरेलल होते हैं। F1 एक्सेस एंड F2 एक्सेस आर पैरेलल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड को एक्सियल। ठीक है। अभी इसको डायग्राम में देखते हैं, F1 F2 इसको देखते हैं डायग्राम में एंड विथ मैप व्यू एंड उसका स्टेरियो प्लॉट। ठीक है। दिस इज फॉर रेफरेंस, दिस इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। दिस इज योर टाइप 0। यहाँ पर देखो टाइप 0 में क्या क्या बनेगा, पूरा यहाँ पर लिख दिया गया।
टाइप 0 में इट विल क्रिएट प्लेन सिलिंड्रिकल फोल्ड्स, टाइप 1 में इट विल फॉर्म नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड, टाइप 2 में नॉन प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल, एंड टाइप 3 में नॉन प्लेन सिलिंड्रिकल। तो ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं प्लेन सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो टाइप 0 इट विल क्रिएट प्लेन सिलिंड्रिकल फोल्ड, टाइप 1 will create plain non-cylindrical fold, type 2 will create non-plane non-cylindrical, then type 3 it will create non-plane cylindrical. This is for your clear and fast अंडरस्टैंडिंग नहीं मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है याद करके फिर से वहां पे डायग्राम काट के बताने के लिए। तो ऐसे याद करना, ओके ओके ओके, नोट ओके नोट ओके नोट ओके नोट ओके ओके, ठीक है। 0 1 2 3 प्लेन सिलिंड्रिकल, प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल, नॉन प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल, नॉन प्लेन सिलिंड्रिकल। तो अभी टाइप 0 में देखते हैं। टाइप 0 में बोला है कि वहां पे प्लेन एंड सिलिंड्रिकल फोल्ड होगा। यू कैन सी दिस इज द F1 फोल्ड, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन फोल्ड, दिस इज अपराइट। यहाँ पे एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन देखो, वर्टिकल है, सिलिंड्रिकल है। यहाँ पर F2 जो है सेकंड जनरेशन फोल्ड, दैट इज ऑल्सो सेम, ओरिएंटेशन दोनों का सेम है। इफ अभी देखो ये एक फोल्ड है, दिस इज द F1 फोल्ड, दिस इज द F2 फोल्ड, एंड आफ्टर इंटरफेरेंस देखो इसका एम्पलीफिकेशन कितना हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है इसका, देखो एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड कितना बढ़ रहा है ना। तो दिस इज हियर ओनली एम्पलीफिकेशन विल अकर, एम्पलीफिकेशन और नॉलिफिकेशन। नॉलिफिकेशन कैसे होगा, अगर इसका क्रेस्ट जो है और ये ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे ही है बट स्टिल ऐसे हो जाएगा। इसके एंटीक्लाइन में एंटी फॉर्म में इसका सिन फॉर्म अगर आ गया तो ये तो नॉलिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका एम्पलीट्यूड फिर से घट जाएगा नॉर्मल फोल्ड से भी। तो दिस हियर एम्पलीफिकेशन और नॉलिफिकेशन हैपेंस इन टाइप 0, एंड इन दिस केस दिस इज द, ये देखो एम्पलीफिकेशन होने के बाद दिस इज द रिजल्टेंट और इंटरफेरेंस्ड फोल्ड, दिस इज द इंटरफेरेंस्ड फोल्ड जिसका एक्सियल प्लेन प्लानर रहता है एंड फोल्ड एक्सिस भी सिलिंड्रिकल रहता है। तो द ओवरऑल रिजल्ट इज प्लेन सिलिंड्रिकल फोल्ड। यहाँ पर देखो राइट राइट, प्लेन एक्सियल प्लेन प्लेन है एंड सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल है। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखो दिस इज योर एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड एक्सिस ये हॉराइजॉन्टल है। अभी हॉराइजॉन्टल होगा अगर तुम्हारा फोल्ड एक्सिस कहाँ पे रहेगा, ये पेरीफेरी में रहेगा। अगर फोल्ड एक्सिस थोड़ा ऐसे डिप कर रहा होगा तो अंदर धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो आवर प्रोजेक्शन इज करेक्ट, एंड प्रोजेक्शन में फोल्ड एक्सिस देखो यहाँ पर रह रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस इनिशियली, पहले ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइप 1, ठीक है ना। टाइप 1 में कहाँ क्या आएगा, टाइप 1 में देखो दिस इज द F1 फोल्ड, दिस इज द F2 फोल्ड, एंड यू कैन सी द डायरेक्शन। यहाँ पे एक्सियल प्लेन कैसा है, दिस इज द एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन आर परपेंडिकुलर एंड फोल्ड एक्सेस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। इसका फोल्ड एक्सिस ऐसा है, इसका फोल्ड एक्सिस ऐसा है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये 90 डिग्री। यहाँ एक्सियल प्लेन देखो, इसका एक्सियल प्लेन ऐसा है, इसका एक्सियल प्लेन ऐसा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि दे विल फॉर्म ऐसे, यहाँ पर देखो डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी देखो ये जो इसको अगर स्ट्रेस फील्ड रिजाइम चेंज में कर देता हूँ, दिस इज द प्राइमरी फोल्ड, ऐसे फोल्ड हो गया। अभी मैं इसको इस साइड से स्ट्रेस दूंगा जो कि ये कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा, ऐसे होगा। तो ये जो बना रहा है दिस इज द डोम 3D में, एंड दिस इज द बेसिन। तो डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर विल फॉर्म। ये देखो ऐसे नीचे अगर चला जाएगा तो एम्पलीफाई होने के बाद एक जगह पे डोम बनाएगा, एक जगह पे बेसिन बनाएगा, एंड वन डोम विल बी सराउंडेड बाय 4 सराउंडिंग बेसिन्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल हो रहा है, क्योंकि डोम एंड बेसिन बनेगा तो एक्सियल जो तुम्हारा फोल्ड एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट होगा। यहाँ पर देखो फोल्ड एक्सिस इज नॉट सिलिंड्रिकल, देख रहे हो फोल्ड एक्सिस ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्सियल प्लेन तुम्हारा ऐसे प्लेन ही है। तो प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल, यू कैन सी टाइप 1 दिस इज प्लेन नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड। अगर एक्सियल प्लेन अगर वर्टिकल है तो देखो वर्टिकल प्लेन इसको बनाया है, ठीक है, लेकिन उसका फोल्ड एक्सिस क्या है, नाउ इट इज डिपिंग। ये फोल्ड एक्सिस देखो हॉरिजॉन्टल से ये कुछ अमाउंट डिप कर रहा है ना,
तो ये पेरीफेरी में नहीं रहेगा, वो अंदर आएगा, है ना, तो अंदर आ गया, दिस इज द प्रोजेक्शन, ठीक है ना। दिस इज फॉर टाइप 1। in this case these are my field photographs, dome and basin structure, this is type 1। you can see यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो ऐसे कैसे लग रहा है कि यहाँ के बेड जो है ऐसे अंदर डिप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंदर डिप कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा थिन क्लाइन और सिन फॉर्म, ये द डिप्रेशन, दिस इज द डिप्रेशन। उसके बाद देखो, ये देखो थोड़ा ऊपर उठा है, तो ये ऐसा हुआ होगा, फिर ये फिर से नीचे गया है, तो डोम एंड बेसिन ऐसा भी बना हुआ होगा। एंड ऊपर से ये इफ ये एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा इरोड होके, तो ऐसे दिखेगा, देखो ये दिस इज द डोम पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि डीप ऐसे बाहर हो रहा है, ऐसे बाहर हो रहा है डीप। एंड दीज आर द, उसके पास बेसिन होगा, ये देखो ये बेसिन होगा, डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर, दीज आर रियल फील्ड एग्जाम्पल। ये बिस्वाल सर के साथ जब हम फील्ड कर रहे थे, ये उसी टाइम का फोटोग्राफ, ठीक है ना। टाइप 1 में देखो ये डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर हो गया, तो उसको कैसे करोगे, मतलब मैप व्यू में प्रोजेक्ट जब करोगे तो मुझे बताओ, दिस इज बेसिन, सब लोगों को पता होगा, ये कन्वर्ज अंदर कर रहा है, डीप अंदर ही कर रहा है ना। इफ डिपिंग इनसाइड देन दैट इज द बेसिन, ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर कोई सा बेड का ओरिएंटेशन लोगे तो स्ट्राइक ऐसे होगा, डीप ऐसे होगा, इसका स्ट्राइक डीप ऐसे होगा, ठीक है ना। इफ इट इज डिपिंग इनसाइड देन दैट इज बेसिन, इफ इट इज डिपिंग आउटसाइड ऐसे डीप होगा ना, then that is your anticline or antiform। so this is your dome। अभी antiform 3 डायरेक्शन में antiform है, तो डोम ही बन गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो डाइवर्जिंग डिप्स, सो दिस इज योर डोम एंड दिस इज योर बेसिन, ठीक है। डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, दिस इज द मैप रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आ जाओ टाइप 2। टाइप 2 में क्या हो रहा है, अभी मैंने जैसे बताया था रिकम्बेंट, टाइप 2 एंड 3 में पहला F1 फोल्ड इज रिकम्बेंट फोल्ड, यहाँ पे देखो रिकम्बेंट फोल्ड नियर हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद ये आ गया, अभी देखो एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन कैसा है, दिस एंड दिस इज द एक्सियल प्लेन ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन कैसा है। एंड फोल्ड एक्सिस, ये फोल्ड एक्सिस ऐसा है, ये फोल्ड एक्सिस ऐसा है, तो फोल्ड एक्सिस। Excuse me, sir. Sir, sorry for the interruptions. I think screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ये Yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल। Sir, but screen is not visible to me. Is this the same problem that everyone is facing? No, sir. Screen is visible, I think. Sorry, sir. I think I have some network issue. Okay, then you just leave and again rejoin. Okay. Okay, sir. Okay. So here you can see this is, what is this, ये अभी तुम्हारा रिकम्बेंट फोल्ड हो गया, और ये तुम्हारा एक्सियल प्लेन। अभी देखो एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन कैसा है, दीज आर आल्सो परपेंडिकुलर, एक्सियल प्लेन भी परपेंडिकुलर है और तुम्हारा फोल्ड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, बट फ्लो डायरेक्शंस आर डिफरेंट। यहाँ पर फ्लो डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर ये फ्लो डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ पर फ्लो डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। तो ये अगर होगा एंड दिस इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ये क्या होगा कि ये देखो ऐसे ऐसे होके दिस इज द रिजल्टेंट। अभी 3D में थोड़ा इसको पेपर उसका ओरिएंटेशन करके मैं कुछ बनाऊंगा मे बी, लेकिन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ये दिस इज द रिजल्टेंट फोल्ड, ठीक है ना, रिजल्टेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस केस ये जो मैं पहले डायग्राम बनाया था उस डायग्राम इज मोर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, दिस डायग्राम, ठीक है। टाइप 2 ही हम पढ़ रहे हैं ना, टाइप 2 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो ऐसा था, नाउ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक क्रिसेंट शेप बना रहा है, क्रिसेंट शेप बना रहा है। तो वही वाला चीज यहाँ पे देखो टाइप 2, यस दिस इज द टाइप 2, तो क्रिसेंट शेप बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देख लो कहाँ गया, इन दिस केस, सॉरी इन दिस केस यहाँ पर देखो एक्सियल प्लेन एंड फोल्ड एक्सिस, यहाँ पर F2 जो है, F2 का फोल्ड एक्सिस भी सिलेंड्रिकल हो रहा है, सॉरी नॉन सिलेंड्रिकल हो रहा है, एंड एक्सियल प्लेन भी यहाँ पे कर्व्ड हो रहा है, एक्सियल प्लेन भी कर्व्ड हो रहा है, एंड उसका फोल्ड एक्सिस वो भी कर्व्ड हो रहा है। इन दिस केस यू कैन सी एक्सियल प्लेन कैसे कर्व हो गया, दिस इज नॉट प्लानर, ये ऐसे ऐसे फिर से मुड़ रहा है, ठीक है ना। ये देखो नॉन प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल,
अभी ये फिर से ऐसे रिफोल्ड भी हुआ होगा, ठीक है ना, नॉन प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल हो जाएगा। एंड दिस इज द ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ द टाइप 2 फोल्ड्स। यहां पर देखो, यस, इन दिस केस, ये डायग्राम को और थोड़ा टाइम लेके कभी समझाएंगे, ओके। इन दिस केस यू कैन सी दीज आर, अभी मैंने बताया था कि वहां पे जो आउटक्रॉप बनेगा वो ऐसे आइसोलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इफ यू आर, ऐसे डायग्राम था ना, ऐसे डायग्राम था, ऐसे क्रिसेंट शेप यहाँ पे बना रहा था, ठीक है, दिस वाज योर F1 एंड दिस वाज योर F2, ठीक है ना। तो इन दिस केस यहाँ पर जो क्रिसेंट शेप आपको मिलेगा, दैट क्रिसेंट शेप इज, जो कि ये यही वाला मिल रहा है। इफ यू आर कटिंग मोर और कट करके नीचे नीचे अगर जा रहे हो, देन यू विल फाइंड दिस वन। यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, ऐसे होके यहाँ पर एक छोटा सा स्टेम, इतना ही छोटा ही मिला, लेकिन इसका एक स्टेम दिख रहा है। तो ये मशरूम का जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड वट एवर द ओरिएंटेशन यू कैन सी, वट एवर द ओरिएंटेशन यू कैन सी, दीज आर द डीप, दिस द स्ट्राइक ऑफ द बेड एंड डीप ऑफ द बेड, दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है ना। कहीं पे डाइवर्स कर रहा है, कहीं पे कन्वर्ट्स कर रहा है, कहीं पे ओवरटोन्ड है, ठीक है। तो दीज आर द मशरूम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे आर फॉर्मिंग। ये देखो, ये एक स्टेम मिल गया, ठीक है ना। दिस इज योर टाइप 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, जहाँ पे मशरूम बनाया गया। दिस इज द फील्ड फोटोग्राफ, यू कैन सी, ये देखो ऐसे ऊपर ऐसे बना रहा है ना, ये दिख रहा है हमें, अभी हमें स्टेम नहीं दिख रहा है, यू कैन सी। ये देखो, अगर ओवरऑल रीजन में देखोगे तो यहाँ से ये देखो, ये हो गया तुम्हारा मशरूम का ऊपर वाला, यही वाला हमें दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऐसे स्टेम, ये जो थिकनेस है ना, ये थोड़ा ऐसे आ होके आएगा, तो ये हमें स्टेम भी दिखेगा। देन ओनली इसको हम मशरूम बोलेंगे, क्योंकि इरोड करके पीछे जाना पड़ेगा, तभी जाके वो मशरूम और सिकल सेप स्ट्रक्चर हमें दिखाएगा। इन दिस केस नॉन प्लेन एंड नॉन सिलेंड्रिकल हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 में इन दिस केस यू कैन सी वट एवर द ओरिएंटेशन, यू कैन सी दीज आर द डाइवर्जिंग, दीज आर द बेड्स जो कि डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। सो दिस इज ओवरऑल द ओरिएंटेशन ऑफ योर टाइप 2 फोल्ड्स, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 में आ जाएगा रिकम्बेंट, देन अपराइट, बट ये इसके नीचे जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि ये वाला फिर से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे फिर से फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हुक पैटर्न बनाएगा। ये हुक है, हुक क्या करता है, एक साइड से छोड़ता नहीं, एक साइड से मतलब क्लोज हो जाता है, दैट्स व्हाई दैट इज हुक। हुक टाइप देखो, यहाँ पर देखो, दिस इज द ओवरऑल रिजल्टेंट फोल्ड, है ना। तो इसका अगर एक्सियल प्लेन हम देखेंगे तो एक्सियल प्लेन इसके बीच में कहीं जाएगा, ये हमारा एक्सियल प्लेन होगा, है ना। तो एक्सियल प्लेन इज कर्व्ड, ये देखो एक्सियल प्लेन कर्व हो रहा है, बट द फोल्ड एक्सिस इज स्ट्रेट, फोल्ड एक्सिस तो स्ट्रेट ही है, तो ये सिलिंड्रिकल फोल्ड हो रहा है ना। फोल्ड इज सिलिंड्रिकल बट नॉन प्लानर, नॉन प्लानर सिलिंड्रिकल फोल्ड बना रहा है टाइप 3। देखो एक्सियल प्लेन नॉन प्लानर है, बट फोल्ड एक्सिस F1 का भी है, F2 का देखेंगे, ये देखो सिलिंड्रिकल हो रहा है। तो दिस इज फॉर्मिंग नॉन प्लेन सिलिंड्रिकल फोल्ड। एंड यहाँ पर अगर इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द डीप ऑफ योर एक्सियल प्लेन्स, ये एक एक्सियल प्लेन है, ये एक एक्सियल प्लेन है, इसके ऊपर और एक्सियल प्लेन्स होंगे, ठीक है ना, और बेड्स होंगे, ऐसे और बेड्स होंगे, और बेड्स होंगे, और बेड्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सियल प्लेन एक डायरेक्शन में, दूसरे प्लेन दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो, इफ दिस इज द लिम्ब, इफ दिस इज द फोल्ड, दिस इज वन लिम्ब, दिस इज अनदर लिम्ब। तो एक लिम्ब दिस डायरेक्शन में डिप कर रहा है, एक लिम्ब दिस डायरेक्शन में डिप कर रहा है। तो ऐसे तुम्हें ओरिएंटेशन मिलेगा, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एक्सियल प्लेन्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सियल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है। दीज आर द स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस एंड यू कैन सी F1 एंड F2 दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। और दोनों पैरेलल है, ऊपर से हॉरिजॉन्टल है। तो एक ही पॉइंट में F1 एंड F2 रहेंगे, जो कि पेरीफेरी में रहेंगे, ठीक है ना। अभी अभी समझ में आ गया इतना। दिस इज ओवरऑल द फील्ड डायग्राम, यू कैन सी, ऐसे देखो, यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ से फिर से क्लोज हो गया, यहाँ से फिर से क्लोज हो गया, यहाँ से फिर से क्लोज हो गया, और यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक हुक हो गया, ये इस साइड आया, फिर ये इस साइड आया, ये देखो ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया।
ठीक है ना. दिस इज वन फील्ड एग्जाम्पल ऑफ योर हुक स्ट्रक्चर दैट विल क्रिएट नॉन प्लेन सिलिंड्रिकल फोल्ड. ठीक है, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे क्लोजर. क्लोजर इज इंपॉर्टेंट, क्लोजर देखना बहुत जरूरी होगा. यहाँ पर देखो क्लोजर कैसा है, ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है, ये देखो यहाँ से क्लोज हो गया, फिर से यहाँ से क्लोज हो गया, फिर से यहाँ से क्लोज हो गया, फिर से यहाँ से क्लोज, ये चला गया. ठीक है ना. और ये दूसरा, ये देखो क्लोजर. क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम उसको कॉमन टाइप ऑफ हुक फोल्ड जब आएगा ना, जेड ऑन जेड, जेड ऑन एस, लेकिन ये जेड ऑन एस, ये जो पैरासिटिक फोल्ड्स ना, ये हर एक में हो सकते हैं, बट कॉमनली ये हुक फोल्ड में टाइप 3 में ज्यादातर दिखते हैं. ठीक है ना. तो एंड फील्ड क्राइटेरिया ओवरऑल ये वाला बात मैं अभी बता देता हूँ. हियर यू कैन सी एक कार्टून टाइप 0, सॉरी टाइप 1 में इट विल क्रिएट एक कार्टून और डोम बेसिन स्ट्रक्चर. टाइप 2 में इट विल फॉर्म दिस मशरूम स्ट्रक्चर और बूमेरंग स्ट्रक्चर, उसको बूमेरंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पर भी वो स्टेम नहीं दिखाया है. पीछे अगर तुम जाओगे उसको इरोड करके करके, देन यहाँ पे ऐसे स्टेम दिखेगा, ये स्टेम ऐसे दिखेगा. ठीक है ना. देन ओनली दिस इज मशरूम स्ट्रक्चर और बूमेरंग स्ट्रक्चर. एंड टाइप 3 में हुक पैटर्न, ये देखो, ये यहाँ हुक बनाया, ये यहाँ हुक बनाया, यहाँ हुक बनाया, यहाँ हुक बनाया. ठीक है ना. दोज आर कॉल्ड योर हुक पैटर्न्स. देन इसका रिप्रेजेंटेशन में वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखना है, इफ इट इज डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर. डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर में कहाँ गया, ये देखो, दिस इज योर डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर ना. थोड़ा साइड करते हैं, चलो यहीं रख देते हैं. देखो दिस इज टाइप 0 का छोड़ दो. अभी टाइप 1 में यहाँ पर ये एक्सियल प्लेन ऐसा है, एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन. तो F1 एंड F2 का नाउ इट इज क्रिएटिंग ओनली द एक्सियल प्लेन ऑफ F1. भी F1 एंड F2 का अगर एक्सियल प्लेन क्रिएट करोगे तो बहुत सारे प्लेन्स हमारे ऐसे आएंगे. ठीक है, ये सोचना, अभी तुम्हारे पास टाइम है सोचने के लिए. एंड दूसरा ऐसे आएंगे, क्योंकि इन दिस केस ये तुम्हारा एक फोल्ड, ये एक फोल्ड है, दूसरा फोल्ड ऐसा है, जो कि एक्सियल प्लेन 90 डिग्री टू ईच अदर है. तो उन लोगों का एक्सियल प्लेन भी 90 डिग्री टू ईच अदर होंगे. एंड इन स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन वो प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, वी यूज द पोल्स टू प्लॉट द प्लेन्स. ठीक है ना. पोल वहां पे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कंसंट्रेट हो जाएंगे. इसके बारे में और डिटेल में हम कभी बात करेंगे. ठीक है. एंड F2 में क्या होता है, ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. F2 में ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पोल्स होते हैं. F1 एंड F2 कहाँ रहेंगे. एंड फाइनली यहाँ पर भी ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट F1 एंड F2 एक ही पॉइंट में रहते हैं, एक ही जगह पे, आइदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉरी नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में होंगे. लेकिन हियर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. यहाँ पर ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बट अलोंग ए ग्रेट सर्कल. यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन में होता है, यहाँ पे ये वाला ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट हियर द ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ए ग्रिड सर्किल में एक ग्रिडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है ना. बीटा एक्सिस ऑफ ग्रिडल लाइंस क्लोज टू द F1 F2 फोल्ड एक्सिस. व्हाट इज द इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज टाइप 3 इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है. F1 एंड F2 एक्सिस लाई ऑन 4 ऑपोजिट क्वाड्रेंट एंड F1 एक्सियल प्लेन्स ऑन ए ग्रिडल. यहाँ पर एक ग्रिडल बनाएगा, बट दैट विल बी नॉट स्ट्रेट ग्रिडल. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल. एंड दिस इम्पोर्टेंट, ये एक चीज है जो भी शायद बहुत जगह पर नहीं मिलेगा. सो द थिंग इज दैट फील्ड क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल और सुपरपोज फोल्डिंग कहाँ पर हुआ है, कैसे पता चलेगा. एक्सियल प्लेन जब कर्व्ड होगा तो वहाँ पे पता चलेगा, हिंज लाइन कर्व होगा तो वहाँ पे हो सकता है, वेरी टाइट फोल्ड अगर मिल रहा है वहाँ पे हो सकता है, ट्रांसेक्टिव क्लीवेज जैसा अवेलेबल होगा तो हो सकता है, इनकॉन्ग्रुअस फोल्ड मिलेगा तो हो सकता है, फोल्डेड बुडिन्स मिलेगा तो, फोल्ड एंड स्ट्रेस्ड बुडिन्स मिलेगा तो वहाँ पे भी सुपर इम्पोज फोल्डिंग हो सकता है. बुडिन आठ हिंज में मिलेगा तो वहां पर भी मिल सकता है, क्योंकि जो बुडिन जो स्ट्रक्चर है ना, बुडिन कहाँ पे मिलता है, लिम्ब में मिलता है ज्यादातर. ठीक है ना. अभी बुडिन ये एक्सटेंशनल एंजाइम में बनता है ना, ये एक अगर फोल्ड है तो अगर यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है तो यहाँ पे बुडिन मिलेंगे ना, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन होने का चांसेस बहुत कम है, रिलेटिवली कम होगा यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे बुडिन कैसे मिल जाएगा. अगर मिल रहा है बुडिन एट द हिंज, देन वहां पे कुछ तो मल्टीपल फोल्डिंग या फिर सुपर इम्पोज फोल्डिंग हुआ है, या फिर फोल्डिंग एक ही इवेंट हुआ है बट स्ट्रेस रिजाइम होके मल्टीपल फेजेस ऑफ फोल्डिंग वहां पर हो सकता है.
These are the field criteria for superimposed folding. Okay, so this is all for this today class. So thank you very much. And if you guys have any kind of doubt right now, then we can discuss right now. I'll have to switch off this. Okay, thank you.